Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I hope all my students are doing well and they are ready to take the class. How are you, my students? I hope you are doing good. You can show me by this if you are doing good. Very nice, very nice. Good. Hadi is showing the thumbs up sign. Very nice. So it's the Friday today and the last working day today. Today we are going to talk about the remaining exercises that we were doing. There are a few more exercises in the textbook that we will do today. Let me open them first here. I haven't yet opened them and then I'll talk to you. We are also to talk about the test on Monday. We would discuss about it today so that you may prepare well and you may take the test on Monday. This page is opening here with me. I haven't yet shared it with you. I'll soon share this page. Okay. So let me share my screen with you to show you the textbook. Okay. Can you see this textbook of English? Those who have the video are good, very nice. We were at unit 3 and we had done a few exercises. Yes, this exercise was done. This was also done, and we had also explained and learned these things. I received homework from many students. This is here. The C exercise. We did not do this exercise, but this is what, let's read. It says, complete the following mind map about the activities. This C I'm reading here. Complete the following mind map about the activities of different natural things, birds, animals, and human beings in a spring season. Normally, we also experience a spring season here in our country, in our city where we live, and we also observe many things when spring comes. जब बाहर का मौसम आता है तो हम भी बाहर के मौसम को एंजॉय करते हैं. उसमें हमें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं. बर्ड्स की ट्विटरिंग यहाँ कुछ लिखी हुई है. स्ट्रीम इज फ्लोइंग. अच्छा, बेशक हमारे एक्सपीरियंस में हो या ना हो, या हमें माइंड में बनाना है जो चीजें हमें पोएम में बताई गई हैं. क्योंकि ग्रीन फील्ड स्लीप्स लिखना था. यहाँ पे आप जब माइंड में बनाएंगे तो इस जगह इसके शुरू में भी एक एस लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि लीप्स लिखा हुआ है यहाँ पे. तो बाकी 2-4 चीजें यहाँ बताई हुई हैं पोएम में. अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ 1, 2, 3, 4, 5 और क्या चीजें बताई गई हैं, एक्सक्यूज मी, तो कोई बताना पसंद फरमाएगा मुझे? रेज योर हैंड्स. Imran Khan has raised his hand first. Salman has also raised his hand. Hamad is raising. Hamad, you tell me first. Unmute and tell. What should we write here? Cook is growing. What is cook? Cook is a chef. Cook एक बावर्ची होता है. हाँ जी, हमारे बावर्ची तो अजाने नहीं देते ना. Cock is crowing, यहाँ हम लिख सकते हैं. फिर मैं सलमान से कहूंगा, सलमान अनम्यूट एंड टेल मी. जी सुलेमान. Sir, cock is crowing. कॉक का हमाद ने बता दिया. Sir, cattle are grazing. Cattle कहते हैं, cattles नहीं कहते. Cattle itself is a plural or collective noun. इसके अंदर जमा ही होता है. तो सारे बच्चे गौर से सुन ले, जब हम वर्ड कैटल कहते हैं तो मतलब बहुत सारे जानवर, चौपाया माल जिसे हम कहते हैं, बकरियां, गाय, भैंसे, भेड़ें, ये सारी इसमें आ जाती हैं. कैटल्स नहीं कहेंगे. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, उससे अगला इन्होंने कहा कैटल आर ग्रेजिंग. फिर मैं किससे पूछूं? हसीब शाह ने हैंड रेज किया. 1 मिनट में हसीब शाह की
आपका माइक अनम्यूट करूं। हसीब शाह अब अनम्यूट करें और बोलें। Sir, small clouds are sailing. स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे हसीब शाह। फिर मेरे पास किसका हैंड रेज है? ये है वजीउल हसन। वजीउल हसन आप बताएं। The sky is blue. द स्काई इज ब्लू इस जगह आ जाएगा, द स्काई इज ब्लू। बहुत अच्छे, शाबाश वजीउल हसन, वेरी नाइस। एक और हमारे पास ये रहती है जगह, यहाँ मुझे अब्दुल मुईज बता सकेंगे? अब्दुल मुईज अनम्यूट करेंगे। सॉरी, मैंने गलती से दोबारा म्यूट कर दिया। अब्दुल मुईज Blue sky prevailing. थोड़ा सा ऊंचा बोलें। Blue sky prevailing. ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, ब्लू स्काई भी हमें बताया वजीउल हसन ने, तो ये रिपीट हो गया आपसे। और कोई चीज? किसी और के जहन में? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टेल मी समथिंग। 3 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, एक मिनट देखते हैं किसने हैंड रेज किया है। आसिफ शाह से मैं पूछ चुका हूँ, हमाद से, सुलेमान से। चले मैं फिर सुलेमान को मौका देता हूँ। सुलेमान खान अनम्यूट करें। The lake dot glitter. The lake doth glitter means the lake shines. The lake shines. ठीक हो गया, वेरी गुड। ये इस तरह से आपने इसको भी फिल करना है, और ये भी एक तरह से होमवर्क है, फिल करके इसकी तस्वीर भिजवानी है। ओके, ये आज का होमवर्क हो गया। वेरी नाइस। अच्छा, आगे है एक्सरसाइज नंबर डी। राइट डाउन एनी फेमस पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इन योर एक्सरसाइज बुक एंड रिसाइट दिस पोएम इन द क्लासरूम। वर्ड्सवर्थ की कोई मुझे बता रहा था कि इसी किताब में एक और पोएम भी है डैफोडिल्स के नाम से। अगर आप फिलहाल वो देख लें पीछे से ही और अपनी कॉपी में उसको लिखें, डैफोडिल्स पोएम को अपनी हैंड रिटन में लिखें, उसको याद करने की कोशिश करें तो अच्छा लगेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को फिलहाल मैं लाजमी नहीं कर रहा हूँ, इसको फिलहाल लाजमी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। चाहे तो लिख के मुझे दिखा दें, चाहे तो फिलहाल उसको पढ़ लें सिर्फ, फिर क्योंकि हमने बाद में वैसे भी इसी में पढ़नी है। तो फिलहाल एक ही होमवर्क हुआ एक्सरसाइज का, और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? हाँ 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 हाँ, बहुत ऊपर चले गए। अच्छा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसकी मैंने उस दिन बात तो की थी चलते चलते। फिगरेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने जब पोएम पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज की बात की थी कि भाई जब तशबीह दी जा रही होती है, इंग्लिश में हम सिमिली कहते हैं, और फिर मेटाफर भी होता है, तो यहाँ उन फिगर्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है। फिगर ऑफ स्पीच की पहले उन्होंने डेफिनेशन बताई है मेरे ख्याल से। डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन अ पोएम सच एज। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारी मुख्तलिफ इस्तिलाहात का इस्तेमाल होता है। टर्म मतलब इस्तिलाह, एक खास अंदाज से किसी चीज को बोलना, और वो उनका इस्तेमाल क्यों होता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आइडियाज। मुख्तलिफ आइडियाज ऐसे होते हैं पोइट्स के जहनों में, राइटर्स के जहनों में, लोगों के जहनों में, कि उनको अगर हम आम अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें तो शायद वो उतने अच्छे तरीके से बयान ना हो। जिस तरह बहुत सारी ज़र्बुल मिसल मशहूर होती हैं, ज़र्बुल मिसाल मौजूद होती हैं, लोग बड़ी बात बताने के बजाय वो छोटी एक ज़र्बुल मिसाल बोल देते हैं, छोटा सा ईडियम बोल देते हैं, तो बात समझ में आ जाती है। जिस तरह सिंपली कहें भागते चोर की लंगोटी, और क्या कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, इसमें बड़ी एक कहानी सुनाने के बजाय एक छोटी सी चीज इसमें बंद करके बता दी जाती है, तो बंदा समझ जाता है कि मकसद क्या है। तो फिगरेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलने के अंदाज होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी मीनिंग कुछ अलग होती है आम अल्फाज से हटकर। अच्छा जी, यहाँ एक एग्जांपल आपको बताई जा रही है, हर होम वॉज अ प्रिजन। इस जुमले का उर्दू में मतलब होता है
उसका मकान या उसका घर एक जेल थी, एक कैद खाना था। उसका मकान उसके लिए एक कैद खाना था। तो अगर सिर्फ इतने ही अल्फाज कह दे तो थोड़ा सा आइडिया उभरता है कि शायद वो तकलीफ में थी अपने घर में, उस पे पाबंदियां बहुत ज्यादा थी, उसके साथ मसाइल बहुत ज्यादा थे। लेकिन अगर हम इन वर्ड्स को एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग लें, फिगरेटिव मीनिंग ना लें, तो कोई घर जेल खाना नहीं होता, कैद खाना नहीं होता। जेल अलग बनती है जिसमें पुलिस वाले होते हैं, चोरों को, मुजरिमों को कैद होने के बाद रखा जाता है। तो रियल मीनिंग इस जुमले की वो नहीं है कि किसी का मकान जेल खाना बन गया है। ये एक फिगरेटिव सेंस है, एक अलामती अंदाज में बताया जा रहा है कि कोई इतनी सख्तियों, इतनी पाबंदियों में था कि उसे अपना मकान एक कैद खाना, एक जेल खाना लग रहा था। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि ये फिगरेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी आ जाती हैं। मेटाफर आता है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बाद में लिखी भी हुई है वो करता हूं। सिमिली आती है, और अभी फिलहाल इन्होंने यही एक्सप्लेन की हैं दो मेरे ख्याल से। यहाँ और भी होती है, जिस तरह मैं कल बता रहा था। इनके अलावा पर्सोनिफिकेशन होती है, सैटायर होता है, आयरनी होती है, हाइपरबली होती है, एलिट्रेशन होती है। लेकिन ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। अच्छा, पहले आपको जो ये बड़ी बुनियादी सी चीज होती है, तो पहले ये बताई जा रही है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या होती है? किसी भी वर्ड की जो एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होती है। यहां हम प्रिजन की बात करें तो प्रिजन मतलब जेल खाना, लेकिन अमूमन घर जेल खाना नहीं होता। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, वर्ड्स यूज्ड, अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे किया जाए टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट, कि वो कुछ मुख्तलिफ चीज बता रहा हो फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग, अपनी उस लुग़वी मीनिंग से, अपनी उस एक्चुअल मीनिंग से हटकर कोई और मीनिंग बता रहा हो। जिस तरह असल में इस हर होम वाज अ प्रिजन में भी मेटाफर था। अहमद इज अ लायन। अली अहमद की बात नहीं हो रही है, अली अहमद अलवी की, ये तो छोटी सी कैट है। अहमद इज अ लायन, अहमद एक शेर है। अब ये लफ्जी मीनिंग में मतलब हम उसको कोई जानवर कह रहे हैं जिसकी एक दुम है, बड़े बड़े बाल हैं और ऐसी चीज, हरगिज हरगिज नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं तुम तो शेर हो, मतलब हम उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं। हम लिटरली उसको कोई जानवर नहीं कह रहे होते हैं, हम उसकी शेर की कोई खूबी या किसी और चीज की कोई खूबी उसमें बयान कर रहे होते हैं। और फिर सिमिली, सिमिली में भी वही चीज होती है। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है जो अपनी लिटरल मीनिंग से हटकर कोई दूसरी मीनिंग दे रहे होते हैं। लेकिन मेटाफर और सिमिली में फर्क ये होता है कि यहां कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन की जाती है, अहमद इज अ लायन। लेकिन सिमिली में वर्ड लाइक का इस्तेमाल, ये रहा, या एज का इस्तेमाल होता है सिमिलैरिटी शो करने के लिए। यहां एक सेंटेंस दिया गया सिमिली का, हिज स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। उसकी मुस्कुराहट ऐसे रोशन थी, ऐसी अच्छी थी, ऐसी प्यारी थी जैसे कि सूरज या सूरज की रोशनी। तो यहां इस सेंटेंस में एज का इस्तेमाल हुआ, ऐसा, जैसा। उस बंदे की मुस्कुराहट इतनी प्यारी, इतनी ब्राइट, इतनी रोशन थी जैसे कि his smile was as bright as the sun। तो यहां इस जुमले में भी, इस सेंटेंस में भी किसी की मुस्कुराहट को किसी और चीज के साथ तशबीह दी जा रही है, सिमिलैरिटी बताई जा रही है। लेकिन यहां इस्तेमाल हो रहा है एज का, या लाइक का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो हमें सिमिली की डेफिनेशन बताई जा रही है। ये सिमिली डेम नहीं है, सिमिली, सीन पे भी जेर, मीम पे भी जेर, सिमिली। Comparison of one thing to another by using words like and as, a literary device। ये एक literary device या figure of speech। literary device का मतलब भी होता है कि एक अदबी इस्तेलाह, और इसमें जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह दी जा रही हो और like और as का इस्तेमाल हो।
यहां मैं क्लियर करना चाहूं, सिमिली और मेटाफर में जो दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है वो एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ होती हैं। वैसे आमतौर पर मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उनकी कोई एक खूबी या एक खामी सिमिलर या डिसिमिलर या कंपेयर की जा रही होती है, अमूमन सिमिलर होती है, वो बताई जा रही होती है। अगर मैं कहूं वजीउल हसन्स हेयर इज एज ब्लैक एज हम्माद्स हेयर, मैंने कहा वजीउल हसन के बाल इतने काले हैं, ऐसे काले हैं जैसे हम्माद के बाल, तो ये ना सिमिली हुई, हालांकि मैंने लाइक का इस्तेमाल किया, तो ये सिमिली नहीं कहलाएगी। एक मिनट हम्माद, तो क्या होगा इसमें, चूंकि हम्माद और वजीउल हसन दोनों एक जैसी चीजें हैं, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे इंसान है, और भी चीजें सिमिलर हो सकती हैं। यहां अगर आप देखें, हर होम वॉज अ प्रिजन, होम घर मकान का जब नाम ही लेते हैं तो एक पुरसुकून जगह का जहन में तस्वर उभरता है। प्रिजन का नाम ले तो वो मकान से वैसे ही हटकर एक अलग चीज होती है। या इसमें सिमिली में देखें, अहमद इंसान है, इंसान को कंपेयर किया जा रहा है एक जानवर से, तो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक खूबी होती है। अब अहमद इज लायन जब कहा हमने यहां से, तो मतलब लायन की खूबसूरती, सॉरी खूबसूरती नहीं, स्ट्रेंथ या उसकी बहादुरी को कंपेयर किया जा रहा है। यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। मैं एक थोड़ा सा इसका मजीद पढ़ के फिर आपको थोड़ा सा आपसे पूछ लूंगा। एग्जाम्पल इसके एक दो और हैं। एग्जाम्पल, ही फॉट लाइक अ लायन। अच्छा, अब ये सिमिली है क्योंकि इसमें इस्तेमाल हो गया लाइक का। वो ऐसे लड़ा जैसे एक शेर लड़ता है, वो शेर की तरह लड़ा। अगर हम सिंपली कहें ही वॉज अ लायन, वो एक शेर था, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द फाइट, ही वॉज अ लायन, लड़ाई में वो एक शेर था। लेकिन हम इस तरह भी कह सकते हैं ही फॉट लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ा। तो अब लाइक का इस्तेमाल हो गया तो ये बन गई सिमिली। ही वॉज अ लायन कह दिया तो वो हो गया मेटाफर। लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं हुआ तो मेटाफर, लाइक और एज का इस्तेमाल हुआ तो सिमिली। आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करता हूं और आप सबको स्क्रीन पे लेता हूं। किसी ने कमेंट करना है, कुछ बताना है तो हैंड रेज करें, फिर हम आगे चलेंगे। रयान ताहिर का थम्स अप है। किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेंगे। अब्दुल्ला इमरान को भी ठीक समझ आ रहा है, हादी को भी ठीक समझ आ रहा है। जिनकी वीडियो चल रही है वो ऐसे थम्स अप कर सकते हैं, और जिनकी वीडियो नहीं है वो इस इमोजी भेज सकते हैं। ठीक है जी। अलवी साहब को समझ आ रही है? अलवी साहब ऐसे करके बताएं। हाँ जी, सबको समझ आ रही है। वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस स्टूडेंट्स, आई थिंक वेरी गुड। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो जरा मुस्कुरा के दिखाएं कि हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, खुशी दिखाएं अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा। अलवी साहब की तस्वीर एक जगह रुकी हुई है। अलवी साहब तस्वीर है या वीडियो चल रही है? अलवी साहब का नेट स्लो है। अलवी साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मुस्कुरा के करें ना, यूं करके मुंह छोटा करके कह रहे हैं। वेरी गुड। चले हम आगे बढ़ते हैं। मुझे चैट में दो मैसेजेस आए हुए हैं, मैं देखता हूं। हाँ, एक साद हबीब ने मुस्कुराती हुई इमोजी भेजी है क्योंकि उसकी वीडियो बेचारे की नहीं चल रही है, तो वो छोटे से इमोजी पे बल्कि 3 बार इमोजी भेजा है। और वजील हसन तो कहते हैं थिंक हो तो बता है, थिंक हो तो बता। वजी अपने पता नहीं क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके वजी, ओके, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, वापस उसी पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, यहां आपको कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं इसी सिमिली और मेटाफर की। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यहाँ एन एटम होना चाहिए। एटम की स्पेलिंग में डबल ए नहीं होता, सिंगल ए होता है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में, एक ए काट दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज लाइक अ सोलर सिस्टम। अब्दुल मुईज कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें अब्दुल मुईज। सर बुक की तस्वीर तो छोटी सी आ रही है, बिल्कुल छोटी सी है। क्या बेटा? सर आपकी तस्वीर बड़ी आ रही है, बुक की तस्वीर छोटी आ रही है। अच्छा,
ये आपकी तरफ आप नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट, मुझे स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी। इसमें स्पीकर व्यू, हाँ मैंने लगाया हुआ है। इसमें गैलरी व्यू आ गया। और अब देखें बुक की तस्वीर बड़ी आती है कि नहीं। मैंने तो ऐसी कोई चेंज इसमें नहीं डाली हुई। अब देखें अब्दुल मुईस, नहीं, सबके पास मेरी तस्वीर बड़ी और बुक की तस्वीर छोटी आ रही है। अगर ऐसा, एक मिनट में अब हमाद से पूछता हूं। हमाद अनम्यूट करके बताएं मुझे। तो ये अगर स्क्रीन पे आपने जूम करके व्यू करो तो बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। नहीं, जिस तरह मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपकी पूरी स्क्रीन पे वो बुक नजर आ रही होती है और हमारी तस्वीरें साइड पे छोटी नजर आ रही होती हैं। तो क्या इस तरह हो रहा है कि मेरी तस्वीर बड़ी आ रही है और बुक की छोटी नजर आ रही है? हमाद? नो सर। वजी हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। वजीउल हसन बोलें, अनम्यूट करें वजी। सर ये जो इससे पता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर 3-4 मरतबा टैप किया होगा ना तो उससे आपकी स्क्रीन बड़ी आ जाती है और बाकी आपके जो पेज की है वो छोटी आ जाती है। तो बाकियों इसी तरह मैंने भी चेक किया। वैसे वजी आपको तस्वीर बुक की बड़ी नजर आ रही है या मेरी तस्वीर बड़ी नजर आ रही है? सर इससे गलती से ना आपकी तस्वीर पे 4-5 मरतबा टैप हो हाँ गया। मुइज आप तस्वीर पे जो बुक वाली तस्वीर है ना उस पे 1-2 बार टैप करके देखें, वो बड़ी होती है आपके पास बुक जहां नजर आ रही है। डबल टैप करें। हाँ हो गया। देखें ये वजी ने हमें, वजी हमारे साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, वजी आइंस्टाइन, उन्होंने हमें बता दिया। थैंक यू वजी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। यहां सेंटेंस है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज लाइक अ सोलर सिस्टम। इस जुमले में क्या है? सिमिली यूज हुई है या मेटाफर यूज हुआ है? जिसको समझ आ रहा है वो हैंड रेज करके मुझे बताएंगे। इस जुमले में ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं, बल्कि इसमें बताया हुआ है, छोड़ दे आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज द सन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड देयर सन। Here, an atomic structure is compared to a solar system by using like. यहां बताया जा रहा है कि like का इस्तेमाल हुआ, therefore it is a simile. Metaphor is used to relate the nucleus to the sun and the electrons to the planet without using words like or as. Hence, similes and metaphors are employed to develop an analogy. यहां पहले जुमले में like का इस्तेमाल हुआ और दूसरे जुमलों में like का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन न्यूक्लियस को सन से और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट से कंपेयर किया गया। आमतौर पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनकी एक सिमिलैरिटी, जिस तरह सूरज न्यूक्लियस की तरह सेंटर में होता है, बाकी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसी तरह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को बताया कि न्यूक्लियस सूरज की तरह सेंटर में होता है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहले सेंटेंस में सिमिली है, लाइक का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे सेंटेंस में सिर्फ मेटाफर है। यहां तक समझ आ गया सबको सिमिली और मेटाफर का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक एक्सरसाइज है। A word that has the same meaning. ऐसे अल्फाज जिनकी आपस में मीनिंग मिलती है उनको हम सिनोनिम कहते हैं। आपने पहले भी पढ़े हैं। फ्यूरियस और एंग्री ये सिनोनिम्स हैं। फ्यूरियस का मतलब भी गुस्से में या गुस्से वाला, और एंग्री भी गुस्से में या गुस्से वाला। ग्लैड और हैप्पी दोनों की मीनिंग खुश। सैड और ग्लूमी दोनों की मीनिंग अफसुर्दा, गमगीन। तो ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? A word that has the opposite meaning. ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज से बिल्कुल उलट हो मीनिंग में, उनको हम एक दूसरे के एंटोनिम्स या ऑपोजिट्स कहते हैं। हॉट, कोल्ड, एक चीज गर्म होती है, एक चीज सर्द होती है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। बिग, लिटिल, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बिग बड़ी चीज होती है, लिटिल छोटी चीज। अप, डाउन,
ये भी आपको पता है, अप ऊपर जाना या ऊपर की चीज, डाउन नीचे जाना या नीचे की चीज। तो आपको यहाँ सिनोनिम और एंटोनिम्स की थोड़ी सी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स बताई गई। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास कुछ और आ रहा है। Read the sets of 4 words given below. Circle 2 synonyms in each of the words. Follow the example. Example बताई गई, hot उसका opposite chilly. hot गर्म को, chilly ठंडे को कहते हैं, chill होना चाहिए था, chilly ठीक है। comfortable cool, comfortable भी पुरसुकून को कहते हैं, अच्छे को कहते हैं, cool भी इसी सेंस में यूज हो जाता है। अब यहाँ कुछ सेट्स हैं, walk, crawl, stroll, run। अब इसमें वॉक का क्रॉल तो नहीं होगा, ये ऑपोजिट्स तो नहीं है, या दो इसमें सिनोनिम्स। सर्किल 2 सिनोनिम्स इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, 2 इसमें सिनोनिम्स होंगे, वो आपने करने हैं। मुझे वॉक का कौन बताएगा? यहाँ पे इनमें से 2 सिनोनिम्स रेज हैंड हुए हैं, देखते हैं किन लोगों के हैंड रेज हुए हैं। एक हसीब शाह का है, हसीब शाह आप बताएं, अनम्यूट करें। सर क्रॉल और रन। क्रॉल और रन, वॉक भी चलना होता है लेकिन क्रॉल नहीं आएगा, स्ट्रोल आएगा। स्ट्रोल पैदल चलने को कहते हैं, क्रॉल तो बंदा या कोहनियों के बल या हाथों के बल मूव करे उसको कहते हैं, और रन थोड़ा सा फास्टर होता है, क्रॉल मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। स्ट्रोल एंड रन को हम सर्कल करेंगे, ठीक हो गया। अगला है आर्ग्यू, इसमें 3 अल्फाज दिए हुए हैं, स्केयर, कंफ्यूज, फ्राइटन। इसमें कोई 2 सिनोनिम मुझे बता सकेगा? नौफिल। जस्ट स्केयर और फ्राइटन। स्केयर और फ्राइटन। आर्ग्यू तो होता है दलील देना, इसमें स्केयर किस तरह सिनोनिम होगा? हाँ, दलील देके किसी को कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़े से अजीब अल्फाज उन्होंने दिए हुए हैं। स्केयर या स्केयर और फ्राइटन, सॉरी, आर्ग्यू के नहीं, आपस में जो 2 सिनोनिम है। मैं इस एक्सरसाइज को सॉरी नहीं समझ पाया, तो यहाँ पे स्ट्रोल और रन ठीक है, या वॉक एंड स्ट्रोल? वॉक एंड स्ट्रोल ये 2 असल में एक दूसरे के सिनोनिम है। इन चारों में से 2 हमने कोई भी ऐसे जो आपस में करते हो। स्केयर और फ्राइटन बिल्कुल ठीक बताया नौफल ने, स्केयर फ्राइटन का सिनोनिम है। वेरी गुड बेटा। कुक, ईट, ड्रिंक, मंच, इसमें जो 2 सिनोनिम्स हो कोई, मैं असल में पहले ये कह रहा था, समझ रहा था कि वॉक इसका कोई सिनोनिम दो, लेकिन नहीं, अब ठीक हो गया। वॉक और स्ट्रोल ये दोनों सिनोनिम्स हैं, वॉक और स्ट्रोल, इन दोनों को हम यहां पर, और असल में पूरा सेट दिया हुआ है 4 अल्फाज का, इसमें से हमने 2 कोई सिनोनिम्स ढूंढने थे। तो स्केयर और फ्राइटन ठीक हो गया। अब थर्ड वाले में मुझे कौन बताना पसंद करेगा? 1 मिनट, मैं देखता हूं किसी और ने हाथ उठाया हुआ है। राहिल मसूद, राहिल अनम्यूट करेंगे और हमें बताएंगे। राहिल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ऊंचा बोलें। ओके, राहिल का चांस चला गया। हम आगे बढ़ते हैं साद हमीद साहब की तरफ। साद हमीद साहब अनम्यूट करें और बताएं। सर ईट और मंच। ईट और मंच, ईट का मतलब भी खाना होता है, चबा की चीजों को, मंच भी चबाने को कहते हैं। वेरी गुड साद हमीद। और उसके बाद ये है लास्ट वाला, रिकॉर्ड, ड्रॉ, पेंट, स्केच। इसमें मुझे रैयान ताहिर बताएं अगर उनको आता है तो। इसका डार्क और स्केच। डार्क नहीं, ड्रॉ करना, ड्रॉ और स्केच, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास 1 मिनट, मोइज। सर आपने कहा था टेस्ट का बताएंगे। टेस्ट का, हाँ अच्छे, असल चीज तो हम भूल गए उस बाकी डिस्कशन में। बेटा हमने यूनिट 1 में नाउन्स और उसकी काइंड्स पढ़ी थी, यूनिट 2 में प्रोनाउंस और उसकी काइंड्स पढ़ी थी,
फिर हमने यूज ऑफ इज एम आर एक क्लास में सीखा था, वो वीडियो भी यूट्यूब पे मेरे पे भी शेयर है, आईसीबी पे भी मेरे ख्याल से शेयर हो गई है, आईसीबी वाले यूट्यूब पे, तो वो वीडियो एक बार फिर देख लीजिएगा, या बुक में भी चीजें मौजूद हैं। तो ये 3 चीजें मैं रखूंगा उस टेस्ट में, और कोशिश करूंगा कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चंस बनाऊं, वो एमसीक्यूज टाइप के, और यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा लिंक, आप उसी तरह हल करके सबमिट करते जाएंगे तो मेरे पास वो टेस्ट आता जाएगा। तो मंडे को हम इन 3 चीजों का टेस्ट लेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन्स जो उसमें हमने सीखी हैं, हालांकि उसमें भी कम सीखी हैं, और भी नाउन्स की काइंड शायद होंगी, तो वो या नहीं उसमें सारी सीख ली थी, या बहरहाल उस बुक में देखिएगा जितनी भी काइंड्स ऑफ नाउन हमने सीखी हैं। 1 मिनट वजी। और प्रोनाउन की तो और भी है, लेकिन हमने बुक में भी जितनी सीखी है यूनिट 2 में, फिलहाल उन्हीं को ही शामिल किया जाएगा, बाकियों को नहीं। और तीसरा यूज ऑफ इज एम आर हमने सीखा था। अगले हफ्ते में हम ग्रामर भी कुछ ज्यादा करेंगे, अभी इस चैप्टर की भी कुछ ग्रामर रहती है, कुछ और भी ग्रामर हमने करनी है, तो इंशाल्लाह इस तरह कर लेंगे। ठीक हो गया। अब किसने कुछ बात करनी है? वजील हसन ने। वजी बोले। सर अगर कोई बीच में कभी ना कभी तो सर अगर वीडियो बंद करनी पड़ जाए सर प्राइवेट, तो फिर कर सकते हैं ना सर बीच में 1-2 मिनट के लिए? बाकी सबकी परमिशन होगी, वजी को नहीं होगी। सर क्यों? देख लें, आप शरारती है ना, चले आपको भी परमिशन दे देंगे। आप क्योंकि वो एनोटेट नहीं कर सकते आप, वो भी मेरे कंट्रोल में आ गया है, तो ठीक है, दे देंगे परमिशन। थैंक यू सर। अगर मैंने करना होता तो मैं चले। ये हुआवे पी, बोलो बेटा, बोलो वजी बोलो। सर अगर मैंने करना होता तो पीछे से 5-10 क्लासेस ले रहा तो उसमें मैं कर देता। पता आपको आज चला हो तो फिर? सर मुझे तो पहले से पता था कि वो सर ये हाईलाइट के लिए कि अब ये सर ये वाला, ये मुझे पता था पहले से। ठीक हो गया। हम वजी पे शक नहीं करते हैं, सॉरी वजी। ठीक है वजील हसन, आप अच्छे बच्चे, मुझे पता है, दिल से आप अच्छे हैं। वैसे आप डांस वांस कर लेते हैं, क्लास में शरारतें कर लेते हैं, दिल से आप नेक इंसान है। अब्दुल सत्तार ईदी हैं जी। हुआवे P20 लाइट से कौन है हमारे साथ? बोले। राहिल। हाँ राहिल, कैसे हैं बेटा? ठीक सर। वो आपने बोला था सर, आपने बोला था कि हम अगले मंडे और ट्यूसडे से ले क्लास उसका टाइम। हाँ बेटा, मंडे को हमारी क्लास होगी 10:05 पे। आप 10:05 पे आ जाएंगे। मैं कोशिश तो करूंगा ठीक 10:05 पर आ जाऊं, नहीं तो 10:06, 8, 10 मिनट तक आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी पहले 8:30 से 10 बजे तक एक और क्लास होगी। ओके। आप नौफिल फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं? नौफिल बोले। बोले नौफिल। सर टेस्ट रिपीट कर दें एक दफा। टेस्ट में बेटा काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो यूनिट 1 और 2 में दोनों पढ़ी हैं चीजें, और यूज ऑफ इज एम आर, ये मेरी एक अलग से ग्रामर में लेक्चर में बताया था, वो उसकी वीडियो यहां भी पड़ी है। और 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है सर। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज आज के लिए। तो फिर अल्लाह हाफिज आज के लिए, मंडे को मुलाकात होगी।